कि अज संविधान सभा के जो निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेड़ बन गई। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. To reconsider and withdraw the following three ordinances and propose electricity amendment bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through three letters which I addressed to the Prime Minister. पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई के विच कि साडे व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई में हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसिया और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुसी नहीं कर रहे कि जिनाल बड़ा हालात अच्छे नहीं पंजाब और देश के विच। Through letter number so and so, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने तीन बिल बनाया। These three legislations, along with proposed electricity amendment bill 220, are clearly against the interest of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural market system established not only in Punjab but also in the original green revolution areas of Punjab, Haryana and Western UP. Clearly the Government of India has enacted legislation and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India in 14:2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the functions and the powers of the state inside the country's constitution. In the associate background, the Assembly sustained to unanimously reject these three legislations and the proposed electricity amendment to 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A massive resolution रखना चाहते हैं for discussion at any time. आपने हम क्या कि मैं बिल पेश करा मैं इन्हों पेश कराता मैं ओके सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर बेतर्क वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। The Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020 and Essential Commodities Amendment Ordinance 2020 ਭਾਵੇਂ ਕਿ पंजाब विधान सभा के इस सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख मंत्री पंजाब वालों उन्हां दे पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जाणू कराया गया सी। फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूना में तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस and Farm
सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 समेत ये तिने कानून साफ तौर पर किसाना बेजमीना कामिया हितां ਅਤੇ ना केवल पंजाब बल्कि मुढ़ली हरी क्रांति के पंजाब हरियाणा ਅਤੇ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खित्तियां विच चिरां तो स्थापित खेतीबाड़ी मंडीकरण प्रणाली के भी विरुद्ध हैं। प्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार ने व्यापारिक कानून घड़े हैं ना कि खेती नाल संबंधित कानून। ये भारत के संविधान एंट्री 14 लिस्ट 2 जिस अनुसार खेतीबाड़ी राज का एक विषय है दे भी खिलाफ हैं। ये कानून देश के संविधान में दर्ज राज के कार्यों और शक्तियां पे एक सीधा हमला है और उन्होंने छलावे नाल हथियाउण का यत्न है। उपरोक्त पिछोकड़ में विधानसभा इन्हां कानूनों और प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं सर्वसम्मति नाल खारिज करने लई मजबूर है। ये सदन एक बार फिर भारत सरकार नूं जोर दिंदा है कि वो न केवल इन्हां कानूनों नूं रद्द करे बल्कि अनाज की घटो-घट समर्थन मुल ते खरीद नूं किसानां दा कानूनी अधिकार बनाउण अते भारतीय खाद निगम अते अजिहे होर अदारियां राहीं खरीद जारी रखण लई नवें आर्डीनेंस जारी करे। सीएम साहब स्पीकर साहब मैं आपको पेश करता हूँ कि पहला था Foreign Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. दूजा Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Services Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. और तीसरा Essential Commodity Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. ये मैं आपको ये बेनती करता है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया एक जी जी वो एजेंडे दे विच ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provision and Punjab Amendment Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 and the Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭੀ ਸੇ। Speaker Sir, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. प्रस्ताव पेश किया गया कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब सोधना बिल 2020 पे तुरंत विचार किया जाए। मेरी हुण हाउस नूं प्रार्थना है कि एक रेजोल्यूशन आया ते 4 एक्ट आए ते है सेम मुद्दा एक ही है। जिहड़ा रेजोल्यूशन सरकार ले आई है वो भी ते चारे एक्ट है बड़े वो भी जे सदन की सहमति होवे असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी इहदे ते बहस करनी है वो चारां नूं इकट्ठा टेकअप कर लिया जाए। सीएम साहब है जी बिल्कुल 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 तुसीं अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी लिस्ट आई है ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
कर लांगे अंतर तो वैसे ही हो जाना बोलदे बुलाने मैं फंड होर ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर देने अद्धे तो ज्यादा कर देने तो बारे ज्यादा बुला देने पहला कोई गल नहीं तुसी पढ़ लो बाकी मेंबर बोल लेंगे नहीं जब तक नहीं कोई तो ही नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो ट्रेजरी बेंचेस को पौना घंटा पहला पौना घंटा से बोल लेते पौने घंटे तैयारी हो चुकी जी हाउस ना नहीं तो शाम हो चुकी सीएम साहब बैठो 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 सीएम साहब बोल रहे हैं सुनो बैठो प्लीज बैठो चीमा साहब प्लीज बैठो चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है प्लीज बैठो हाँ सीएम साहब स्पीकर साहब एक कदम तो ये गल चल रही है मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिसके साथ ये डिस्कशन चल रही है ये बिल बने दैट वी स्टार्ट विद शांतक पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमेटी रिपोर्ट भी बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा था शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट में आई थी एंड समिंग अप इज देखिए इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं इनपुट प्राइस होएगा पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है while output prices are not keeping up with the rise of cost of production ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया नवी 2006 की गल फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते लेकिन असी शांतक कमेटी शांतक कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने दिन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 आ चुकी सी इन्होंने आ रिपोर्ट है शांतक कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दो इसका बड़ा नुकसान है FCI शुड नॉट बी देयर जिहड़ा देश को बड़ा नुकसान है फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेदे ते सब कुछ लेके आए नाउ आई वांट टू नो मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साडे हिंदुस्तान का उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून बेस पे बढ़ाओ एक करके दूसरा तीजा करके खत्म कर दें GST की गल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे कितने हो गए महीने 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू 9,500 करोड़ सानू ड्यू
Where are the constitutional guarantees? ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। This is one, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ is a state subject. It comes here in the Constitution of India. ਇਸ Constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ it is state subject. तो ਐਂਟਰੀ 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, which is clearly agriculture, including agriculture, education, etc. is not. और 28 ने मार्केटां ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 means trade is agricultural trade. ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पास जाके अपनी चीज़ों की खरीदते हो बेचते हो। लेकिन ट्रेड तो नहीं कि जोड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल त्यागते हारवेस्ट करता है, उन्होंने वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके ना सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं तुम कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उत्थे मटर बीजना है और मटर से मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. So a trade no under section 33 how they have brought it, मैं कहीं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई, why didn't you बहस क्यों नहीं करो? बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि ओके लोकसभा के बहस नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, ना कानून पास करो, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून को बहस नहीं कराओ? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैंने ये समझ आती है इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स। आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया। नंबर 1 सैकेंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM फॉरेन लग्या सी उरे आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाने वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल PM फॉरेन की 10 मिलियन टन तुसी इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इतने कोई काल ना आ जाए, लोग भुखे ना मरन लग जाए देश। फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साडे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवीं कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, फिर तुसी चौल अपने फिलीपींस ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, और 4 सालों के 66 तो लैके 10 सालों के अन्न बाहरों मंगाउण की लोड़ नहीं पई। साडे पंजाब ने हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो असीं 70 साल साडा काम चलदा रहा, नवीं फसलां आईयां, मेहनत की, कणक की धुप्प दे विच काम की, मर ठंड उत्थे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। भुल गए तुम इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणे वाले यूपी वेस्ट वाले हुमता क्यों करती है इन्होंने, क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब को। ये इंसाफ है?
I would like the Prime Minister to tell me ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 22,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ कैसे कैसे जिएंगे, साढ़े मापे बैठे ने, साढ़े बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे। ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे पर उतो भी मैंने पता सी मुश्किल नाल साह होता सी 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है। सियाचिन ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ 1.5% 57% लोग ने पंजाब में जो 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 देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाने ने जरूर संकट आते। तुसी ये भी भुल जाते हो सारिया कि मैं ये समझना चाहता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो आज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साड़ी अज अखबार के किसी अखबार कि इंडस्ट्री की रेवन्यू 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जोड़ा फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं उन किसानों जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने हूँ समय आ गया कि असी थोड़ा अपने साढ़े नाल करो। देखो दो गल्लां हो सकती हैं। इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बन सकता नहीं अगर असी समझते हैं कि सिर्फ आप टोल प्लाजा रोक दो सारा रोक दो कोई ये कुछ फर्क पैदा है, ये कुछ फर्क नहीं पैदा। फर्क पैदा है देखो तुम कोई बिजली देख लो। अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो को मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े को 20-10 खत्म हो गया। GVK खत्म हो गया। सिर्फ लहरा रोपड़ सारे कुछ बोला है कितों खरीदा है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदे पैसा कितने थोड़े को खरीदन साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को। We have to, if we have to buy, we can't buy. आज कोड़ा खरीद के रख ले तो क्यों नहीं रखा क्योंकि they don't get जरा जिन्ना कोड़ा सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा असीं तुहाडे नाल खड़े हैं अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनूं पता अज कोई बोल नहीं रहा है पर जब बोलेंगे सारे किसानों के नाल करते हैं साउथ और असीं तुहाडे नाल अंत अकेले दम तक छोड़ना करेंगे। लेकिन हुण थोड़ा काम है साढ़े नाल करना। मैं सरकार चलाउणी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर पैसे देने मेरी डिवेलपमेंट ने इत्थे सारे मिनिस्टर बैठे ने उन्होंने पैसों की लोड़ वास्ते। तो इस करके हुण आपां नूं अपना रेगोक वगैरह बंद करो, आपां नूं पंजाब चलाइए आपां और इत्थे अपने
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ सिर्फ 10% यूरिया जो कणक की बजाय हो रही है, 10% थोड़े को यूरिया थोड़े को जी अज सारे स्टॉक्स भरे पे ने सारे गोडाउन के जाता ही निकलते नहीं मैं नवी झोना कितने रखना फिर थोड़े को जोड़े तुम फर्टिलाइजर बाहर होने उन्होंने आना उतों। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकॉनमी का 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहना मैं क्या पहला कि लोग कुछ कहते हैं कि तुम ये गल् क्यों करते हो करनी पैदियां पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब मैं नहीं चाहता कि यह काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैनू पता है कि कुछ हथियार आते हैं कैसे आते हैं किन्ने ड्रोन आते हैं किन्ने आ चुके किन्ने हथियार ने किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व थे उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया सब कुछ देखिया सी। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलदा ते ये मूवमेंट बढ़ेगी कटेगी नहीं। यही होया सी 1984 यही होया सी 90 दे विच किन्ने बंदे शहीद कीते ने। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 साल के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है जो लोग लेके आए हैं कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इत्थे साडी इकोनॉमी किस तरीके इंक्रीज करेगी साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुम्हें होर दस देना कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों काराकोरम हाईवे आ रही है एक टनल सोने बनाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे सकता। डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते सकावांगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं बाकी मंडिया की गल कर रहे हैं अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए फिर दसो पंजाब का क्या देश का कहना है। तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़े। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को मेजर रोल है एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए गल बहुत जेडे जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती अपना अपने कटे ने हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साਡਾ नुकसान हो रहा है साढ़े पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 से लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी ना कोई लिंक रोड बने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी फिर कैसे चलेगा साਡਾ पंजाब। तो इन्होंने कहता कि असं कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवानी। तीसरी गल फर्टिलाइजर हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने कहा है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को
हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे 2,500 रुपये पूरी फसल की फल जिन्ना फर्टिलाइजर सानू चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक है और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 21,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की एंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आईया नहीं गल्लां पर आउणियां पर ये साडा काम किस कदर दा है ਇਹਦਾ सामना करिए सी। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं इधर मैं बोली जावा तो सारा वास्ते तो मेरा बहुत कुछ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ इस काम से बेनती करना चाਹੁੰਦਾ स्पीकर साहब ये एक समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल खड़ना पाओ खड़े पता है ये हाउस आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट। सेंटर ने बंद करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर लेके जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे लेकिन हसी we will fight this इस बैटल में लेके जावांगे हर अदालत के सामने वोट करेंगे। एक बात आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साउथ में मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए 82 सालों के लिए जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं सब ने दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम दत्त मारो अज पेट से लपाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार में ऐसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप देना जो मर्जी कर मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते हैं मैनू कट दें मैनू दवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर लेंगे करते हैं लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों का जिस तरीके मिलते इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब मैं सीएम साहब को बधाई देना चाहना रात जिन्नी देखी है स्पीकर साहब 17 उन्ना ही करता अज के विधानसभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सच कुछ हो अज सारी विधानसभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मूंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है पूरे हिंदुस्तान के गई है तो तुम मेहनत का शुभ वक्त के सत्या ऐसा फरामोश और एक